خانہ کعبہ کی عظیم الشان دیواروں اور دروازے کو جس متبرک کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اسے کسوہ یا غلاف کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک کپڑا نہیں بلکہ محبت، عقیدت اور روحانیت کا ایسا لباس ہے جس کا لمس قلوب کو گرماتا اور آنکھوں کو نم کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ شریف کو غلاف دینے کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے ہوئی۔ یہ اللہ کے گھر سے عقیدت و محبت کا اظہار تھا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک 4000 برس سے یہ روح پرور رسم جاری ہے۔ تاریخی کتب کے مطابق آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مملکت یمن کی جانب سے بھی یہ فریضہ انجام دینے کے شواہد ملتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ طوبہ الحمیری نے بھی کعبے پر غلاف چڑھایا تھا۔ یمنی بادشاہ نے مکہ سے واپسی پر ایک موٹے کپڑے کو استعمال کرتے ہوئے غلاف کعبہ تیار کرایا۔ اس غلاف کو کشف کا نام دیا گیا۔ الحمیری نے غلاف کی تیاری کا یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھا اور اگلی بار المعافیریہ نامی کپڑے سے غلاف کعبہ تیار کرایا۔ یہ کپڑا یمن کے قدیم شہر میں تیار کیا جاتا تھا اور بے حد قیمتی ہوتا تھا۔ طوبہ الحمیری کے بعد کے ادوار میں بھی غلاف کعبہ کی تیاری جاری رہی اور بیت اللہ سے عقیدت کے اظہار کے لیے قیمتی اور نایاب کپڑے استعمال کیے گئے، جن میں چمڑے سے لے کر مصر کا قبطی کپڑا بھی شامل تھا۔ قبطی کپڑا بھی اپنی نفاست کے اعتبار سے دنیا میں منفرد خیال کیا جاتا تھا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور رسم کو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش مکہ کا تیار کردہ غلاف کعبہ کی زینت بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل نہ کیا بلکہ اسے باقی رکھا گیا۔ تاہم جب خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکنے والی ایک خاتون کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید اور سرخ رنگ کا یمنی کپڑے کا نیا غلاف بنوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی خلفائے راشدین نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے بھی سفید رنگ کا غلاف کعبہ تیار کرایا۔ اس کے لیے بھی قبطی نامی کپڑا ہی استعمال کیا گیا۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال سے سال میں 2 بار غلاف بنایا اور تبدیل کیا جاتا رہا۔ فاطمی دور میں غلاف کعبہ زرد رنگ کے کپڑے سے تیار کیا گیا۔ محمد بن سبکتگین کے دور میں زرد ریشمی کپڑے کے غلاف نے کعبہ شریف کو منفرد صورت عطا کی۔ عباسی دور میں خلیفہ ناصر نے سبز ریشم سے غلاف کعبہ تیار کرایا۔ بعد ازاں عباسی دور میں ہی سیاہ ریشم سے غلاف کعبہ کی تیاری ہوئی اور اس کے بعد کسوہ کی تیاری کے لیے سیاہ رنگ کو ہی پسند کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری محبت و عقیدت کا معاملہ تھا، اس لیے اس کے رنگوں کے انتخاب میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ قبطی کپڑا مصر سے لایا جاتا تھا جو معیار میں اعلیٰ ترین تھا۔ اسی طرح یمنی المعافیریہ کپڑا بھی بہترین تھا۔ عباسی دور کے آخر میں غلاف کعبہ کے لیے سیاہ رنگ کو حتمی طور پر منتخب کیا گیا۔ کپڑے کے ساتھ اس رنگ کو بھی دیرپا مانا گیا اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے حاجیوں، زائرین اور لوگوں کی طرف سے اسے بار بار عقیدت سے چھونے اور چومنے سے اس کپڑے کا معیار متاثر نہیں ہوتا تھا۔
गुज़िश्ता सदी में सऊदी अरब में आले सऊद खानदान के शाह अब्दुल अजीज पहले हुक्मरान थे जिन्होंने गिलाफ काबा तब्दील किया। गिलाफ की ये तब्दीली 1946 में अमल में आई थी। यहाँ एक दिलचस्प अमर का जिक्र करना भी जरूरी है कि गिलाफ काबा के कपड़े की तैयारी का एजाज एक मर्तबा पाकिस्तान के हिस्से में भी आ चुका है। अगस्त 1962 में एक सऊदी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया और गिलाफ काबा की तैयारी के इम्कानात का जायजा लिया। वफ्द ने पूरे मुल्क में कारखानों के दौरे के बाद इस काम के लिए कराची के बनारस सिल्क हाउस का इंतखाब किया। इब्तदाई तौर पर किस्वा की बनावट, मयार और मटेरियल की नौयत जांचने के लिए आजमाइशी तौर पर एक टुकड़ा तैयार करके सऊदी अरब भेजा गया। ये नमूना शाह सऊद को पसंद आ गया और वहीदुद्दीन अंसारी ने कराची में इस मुकद्दस काम का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के कारीगर और हुनरमंद बावजू होकर रात दिन इस मुकद्दस काम की तामील में लगे रहे। फरवरी 1963 में 700 गज रेशमी गिलाफ की पहली खेप अर्ज़ मुकद्दस भिजवाने के लिए तैयार हो गई। 22 फरवरी 1963 को पोलो ग्राउंड कराची में गिलाफ काबा के कपड़े को अवाम की जियारत के लिए रखा गया। उस रोज अकीदत के वालेहाना मनाजिर देखने को मिले जब लाखों लोग तकबीर पढ़ते हुए पोलो ग्राउंड पहुंच गए। किस्वा को शीशे और लकड़ी के एक बॉक्स और फौलाद के दीगर 8 बक्सों में रखा गया था। इस तकरीब में दीगर इस्लामी ममालिक के सिफारती नुमाइंदे भी मौजूद थे। कमिश्नर कराची अफजल आगा ने मुकद्दस पार्चा सऊदी सफीर के हवाले किया। आले सऊद से कबल मिस्र से तोहफे के तौर पर हर साल गिलाफ काबा भिजवाया जाता था। उस दौर में जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के सदर थे। 1962 में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब गिलाफ काबा बंदरगाह पर पहुंचा तो काफी ताखीर हो गई थी। इस मौके पर सऊदी अरब के शाह सऊद ने वली अहद शाह फैसल को गिलाफ काबा की तैयारी के लिए कारखाना लगाने का हुक्म दिया। इस कारखाने की बदौलत किस्वा या गिलाफ काबा की तैयारी मुकामी तौर पर शुरू हुई और ये सिलसिला ताहाल जारी है। गिलाफ काबा की तैयारी के दौरान मयार और शरई उसूलों का भी बेहद सख्ती से ख्याल रखा जाता है। इस कारखाने में गिलाफ काबा की तैयारी के दौरान इंतहाई पाक और साफ पानी इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद के लिए पानी साफ करने वाला एक खास कारखाना भी लगाया गया है जहां सिलाई से कबल कीमती रेशम को उसी पानी से धोया जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सिलाई मशीन भी नस्ब है। इस कारखाने में गिलाफ काबा को जिस रेशम से तैयार किया जाता है वो बेहद नफीस और आला तरीन मयार का होता है। गिलाफ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम इटली से मंगवाया जाता है। ये रेशम A5 ग्रेड का हामिल होता है। इसके तारों की मोटाई 3 मिलीमीटर तक होती है। खुसूसी तौर पर तैयार होने वाला ये रेशम और इसकी मोटाई कपड़े की मजबूती और लचक की जामिन होती है। और सिर्फ यही नहीं, रेशम का धागा मुतादिद टेस्ट पास करता है जिसमें थ्रेड टेस्ट से लेकर मोटाई, मजबूती, रंगने, मैचिंग, डाइंग और धात के तारों के साथ इस्तेमाल होने की अहलियत जैसे टेस्ट शामिल होते हैं। किस्वा पर सोने और चांदी के तारों से कुरानी आयात कुंदा की जाती हैं। ये सुनहरी और चांदी की तारें जर्मनी से आती हैं। सोने और चांदी के इन धागों को जांचने के लिए भी मुख्तलिफ टेस्ट से गुजारा जाता है ताकि इनके मयार और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। गिलाफ काबा के मयार को यकीनी बनाने के लिए शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में एक तजुर्बेकार टीम इन तमाम टेस्ट्स की निगरानी करती है। गिलाफ काबा की तैयारी में प्रिंटिंग का मरहला भी इंतहाई अहम होता है। कारखाने के प्रिंटिंग के शोबे में काम गिलाफ काबा की पट्टी पर आयात की प्रिंटिंग से शुरू होता है। कारखाने के कारकुन कुरानी आयात की प्रिंटिंग के लिए सिल्क स्क्रीन,
सफेद और जर्द रोशनाई का इस्तेमाल करते हैं। ये रोशनाई इंतहाई आला मयार की होती है और इसे निहायत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। कशीदाकारी और प्रिंटिंग जैसे मामलात की निगरानी के लिए खास शोबा कायम है जिसे बेल्ट डिपार्टमेंट कहा जाता है। गिलाफ़े काबा पर नजर आने वाली सुनहरी पट्टी की तैयारी के लिए इंतहाई बारीक बीनी और एहतियात से काम किया जाता है। इस पट्टी पर कुरानी आयात लिखी होती हैं। इस पट्टी की तैयारी के लिए 16 अलग अलग टुकड़े तैयार किए जाते हैं जिन्हें बाद में जोड़कर एक बेल्ट की शक्ल दे दी जाती है। इसी दौरान मुख्तलिफ साइजेस के 6 टुकड़े पट्टी के नीचे और 4 मजबूत टुकड़े काबा के चारों कोनों के लिए तैयार किए जाते हैं। साथ ही पट्टी के नीचे मशालों के 12 नक्श भी तैयार किए जाते हैं जो इस्लामी फन्ने खत्ताती का आला तरीन नमूना होते हैं। हजरे अस्वद के ऊपर वाले हिस्से पर लगाने के लिए भी खुसूसी कपड़े के टुकड़े तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा काबा शरीफ के दरवाजे पर लगाने के लिए भी खुसूसी कपड़ा तैयार होता है। ये तमाम टुकड़े मिलकर जब मुकम्मल किस्वा की शक्ल इख्तियार करते हैं तो देखने में जाहो जलाल और हुस्न का बेमिसाल इम्तिजाज पेश करते हैं। गिलाफ़े काबा की तैयारी के दौरान सऊदी आला हुक्काम मुसलसल इस अमल पर निगाह रखते हैं और काम के मयार को सख्ती से जांचा जाता है। गिलाफ़े काबा की तैयारी में 670 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल किया जाता है। गिलाफ़े काबा की मोटाई 98 सेंटीमीटर होती है और ऊंचाई 14 मीटर। रुकनीन की जानिब से गिलाफ की चौड़ाई 10.78 मीटर, मुल्तज़िम की जानिब से इसकी चौड़ाई 12.25 मीटर, हजरे अस्वद की समत से 10.29 मीटर, जबकि बाबे इब्राहिम की जानिब से 12.74 मीटर होती है। गिलाफ़े काबा की तैयारी पर 20 मिलियन रियाल लागत आती है। गिलाफ़े काबा की तब्दीली के रोज मुतवल्ली खानदान को गिलाफ हवाले करने की रस्म सदना भी अदा की जाती है। काबा शरीफ दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए अकीदत का एक मरकज भी है। इसी हवाले से किस्वा का हुस्न बैतुल्लाह को ऐसा रूप अता करता है कि ज़ायरीन के दिल बाग बाग हो जाते हैं। काबे का ये हसीन गिलाफ हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े के शायान शान भी होता है। शाही खानदान के अरकान और हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह गिलाफ की तब्दीली के अमल की निगरानी करते हैं। गिलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल बराह रास्त नशर भी किया जाता है। गिलाफ की तब्दीली के दौरान सबसे पहले अल-हतीम की तरफ से गिलाफ़े काबा को खोला जाता है और उसकी जगह नया गिलाफ डाला जाता है। गिलाफ़े काबा को ऊपर से नीचे की तरफ फैलाया जाता है। चारों अतराफ से पर्दे लटकाने के बाद उन्हें ताने बाने से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद हजर अस्वद के ऊपर बाबे काबा के बैरूनी पर्दे पर अल्लाहु अकबर के अल्फाज पर मुश्तमिल 5 मशलें लगाई जाती हैं। आखिरी मरहले में काबे के दरवाजे का पर्दा तब्दील किया जाता है। गिलाफ की तब्दीली के बाद पुराने गिलाफ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और सऊदी अरब का दौरा करने वाले मुसलमान मुल्कों के रहनुमाओं को बतौर तोहफा ये टुकड़े पेश किए जाते हैं। सन 2022 में गिलाफ़े काबा बदलने की तारीख में तब्दीली की गई। पहले किस्वा को यौम अरफा पर बदला जाता था, लेकिन अब ये यकुम मुहर्रम को बदला जाने लगा है। इस तब्दीली का मकसद किस्वा की तैयारी और तब्दीली के अमल को मजीद मुनज़्ज़म और बेहतर बनाना था। गिलाफ़े काबा की तब्दीली की तकरीब के दौरान मस्जिदुल हराम में मौजूद ज़ायरीन भी इस यादगार तकरीब के शाहिद होते हैं। ज़ायरीन का कहना है कि इतने खूबसूरत मनाजिर जिंदगी में बहुत कम देखने में आते हैं, इन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं।